Hello friends, welcome to our Ever Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 10th of April 2021 related current affairs. But before starting, let us we talk about some important news headlines related to 10th of April 2021. So the first important news headlines of today's is PM Modi to release Hindi version of Odisha Itihas by Dr. Hare Krishna Mehtab. Prime Minister Narendra Modi will release the Hindi translation of the book Odisha Itihas written by Utkal Keshri Hare Krishna Mehtab on 9th April at the Ambedkar International Center. The event marketing the release of the Hindi version has been organized by the Hare Krishna Mehtab Foundation. PM मोदी करेंगे डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की उड़ीसा इतिहास की हिंदी संस्करण का विमोचन। जैसा कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्कल केशरी हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का विमोचन करेंगे। हिंदी संस्करण के विमोचन का आयोजन हरे कृष्ण मेहताब फाउंडेशन द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज कोसोवो's पार्लियामेंट्री इलेक्ट्स वजोसा ओस्मानी एज प्रेसिडेंट। जैसा कि हमें पता है कि कोसोवो कंट्री की नई प्रेसिडेंट बनी है वजोसा ओस्मानी। जैसा कि हमने कल पढ़ा है कि कोसोवो's पार्लियामेंट इलेक्टेड वजोसा ओस्मानी एज द कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। Osmani received 71 votes from the lawmakers at the third round of voting in the Assembly of Kosovo. While 82 deputies participated in the vote in the 120-member parliament, 11 votes were declared invalid. The 38-year-old politician studied law at the University of Pristina in Kosovo and earned a doctorate from Pittsburgh University in the US. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। कोसोवो की नई प्रेसिडेंट है वजोसा ओस्मानी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज अबाउट द फीफा। फीफा सस्पेंड्स पाकिस्तान एंड चैड फुटबॉल फेडरेशंस। फीफा हैज सस्पेंडेड द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF एंड चैडियन फुटबॉल एसोसिएशन FTFA with immediate effects due to claims of outside interference. The suspension will be lifted once the relevant government decisions have been repealed. फीफा ने पाकिस्तान और चैड फुटबॉल संघों को निलंबित किया है। बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF और चाइडन फुटबॉल एसोसिएशन FTFA को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार के संबंधी फैसले निरस्त होते ही निलंबन हटा लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। फीफा में इस साल नहीं पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान और चैड फुटबॉल फेडरेशंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज अबाउट द ग्रेट खली फॉर्मली इंडक्टेड इन WWE Hall of Fame 2021. The Great Khali has been inducted into the WWE Hall of Fame class of 2021. The Great Khali went on to battle many of WWE's most legendary superstars, including John Cena, Batista, Shawn Michaels, and fellow 2021 inductee Kane, whom he defeated to pick up his first win on the grandest stage of them all, WrestleMania. हमें पता होना चाहिए कि WWE Hall ऑफ फेम 2021 में औपचारिक रूप से शामिल हुए द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है। द ग्रेट खली ने WWE के कई दिग्गज सुपरस्टार को टक्कर दी, जिनमें जॉन सीना, बटिस्टा, शॉन माइकल्स और 2021 में शामिल साथी कैन शामिल थे, जिसे उन्होंने द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल रेसलमेनिया में अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए हराया था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है द ग्रेट खली।
Next important news headlines of today's is about the book देवी शंकर अवस्थी awarded 2020 और 2020 award to Ashutosh Bhardwaj. The famous Devi Shankar Avasthi Award has been awarded to the prolific Hindi prose journalist and critic Ashutosh Bhardwaj. This honor has been given to them for this work Pitravad. He was elected by the selection committee of Ashok Vajpayee, नंदकिशोर आचार्य एंड राजेंद्र कुमार. हमें पता होना चाहिए कि पितृवध किताब के लेखक आशुतोष भारद्वाज जी को इस किताब के लिए देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है. इन्हें यह खिताब जो है अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार द्वारा दिया गया है. So guys, now let us we talk about 10th of April 2021 related current affairs. So today's first question is किस प्राद्योगिक संस्थान ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? Which technology institute developed a dengue detection device in 1 hour? So answer is IIT Delhi. Important है, हमें याद रखना है कि IIT दिल्ली के छात्रों ने जो है डेंगू डिटेक्शन डिवाइस बनाया है जो कि 1 घंटे में डेंगू को पता लगा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है? हु वाज अवॉर्डेड द वीरनी अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़? सो आंसर इज दूती चंद. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है 100 मीटर जो एथलेटिक्स है अपनी दूती चंद, इन्हें जो है वीरनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फीफा ने किस देश ने फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है? फीफा सस्पेंडेड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच कंट्री? सो आंसर इज पाकिस्तान. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the chairman of Airport Authority of India और AAI? So answer is संजीव कुमार. Important है, हमें याद रखना है कि संजीव कुमार जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन घोषित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हीकल्स और लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द लैब ऑन व्हील्स इनिशिएटिव? सो आंसर इज कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है लैब ऑन व्हील्स रिलेटेड टू द स्टेट दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? When CRPF शौर्य दिवस was celebrated? So answer is 9th of April. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज झारखंड राज्य में कितने करोड़ रुपए के 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? How many crores of 14 road projects approved in the state of Jharkhand? So answer is 670 crore rupees. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed the new coach of the American men's hockey team? So answer is हरेंद्र सिंह. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कोच ऑफ अमेरिकन मेंस हॉकी टीम इज हरेंद्र सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच एस्टेब्लिशमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द भारतीय जनता पार्टी ऑन 6th of April? सो आंसर इज 41st. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 41वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है बीजेपी द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस राज्य के मधु क्रांति पोर्टल और नेफिड की हनी कॉर्नर को लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल एंड नेफिड्स हनी कॉर्नर इन विच स्टेट? सो आंसर इज स्टेट न्यू दिल्ली. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021 से 22 में स्क्रैप बेचकर कितनी बिक्री की है? हाउ मच सेल्स डिड इंडियन रेलवे सेल्स by selling scraps in the year 21 to 22? So answer is rupees 4573 crores. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज भारत ने किस देश की राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARI
के साथ समझौता किया है? इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी और NARL? सो आंसर इज कंट्री जापान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ कंट्री जापान इज टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने GSAP 1.0 के तहत कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार में खरीद की घोषणा की है? RBI announced in the open market purchase of government securities of how many crore rupees under GSAP 1.0? So answer is 1 lakh crore rupees. Important है, हमें याद रखना है 1 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज किसने एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल एग्जाम वॉरियर्स? सो आंसर इज PM मोदी जी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है PM मोदी रिलीज्ड अ न्यू बुक नेम्ड एग्जाम वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाने किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? Indian Army Chief MM Narwane has gone on 5-day visit to which country? So answer is Bangladesh. Important है, हमें याद रखना है। And capital of Bangladesh is Dhaka. Next question, question number 16 is किस राज्य ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? Which state decided to work 5 days in a week? So answer is मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे सभी लोग और 2 दिन जो है लॉकडाउन का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नविक कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन नविक टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स? सो आंसर इज नेत्रा कुम्मनन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, हमने कल भी पढ़ा था इनके बारे में। नेत्रा कुम्मनन जो है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज किसने सबसे तेज एकल साइकिल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं? हु ब्रोक 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन फास्टेस्ट सिंगल साइकिल? सो आंसर इज लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ब्रोक 2 Guinness World Records in the fastest single cycling. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एकल साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज किस कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में SSI जांच के आदेश दिए गए हैं? इन विच कोर्ट ऑर्डर्ड द ASI इंक्वायरी इन काशी विश्वनाथ टेम्पल ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट? सो आंसर इज वाराणसी कोर्ट में किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज आतंकवाद के विरुद्ध भारत में संयुक्त राज्य और राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया गया है? हाउ मेनी डॉलर्स कंट्रीब्यूटेड टू द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड इन इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म? सो आंसर इज $5 लाख। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हु वाज अवॉर्डेड द देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020? सो आंसर इज आशुतोष भारद्वाज। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, पितृवध किताब के लिए आशुतोष भारद्वाज जी को देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? हु वाज इंक्लूडेड इनटू WWE हॉल ऑफ फेम 2021? सो आंसर इज द ग्रेट खली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? What is the percentage decrease in international passenger traffic? So answer is 89% गिरावट आई है ड्यू टू कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज सुहास कुलकर्णी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? सुहास कुलकर्णी हैज पास्ड अवे, विच स्पोर्ट ही इज रिलेटेड टू? सो आंसर इज टेबल टेनिस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है सुहास कुलकर्णी जी का संबंध टेबल टेनिस से था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। सो गाइस, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा,
ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।